Yes, dear students, once again we are meeting here with the chapter, same chapter we are going to continue. The chapter was agriculture, and last time I told you about two videos are given on this chapter. The first part was containing a definition of agriculture, types of farming, primitive subsistence farming, other names of subsistence farming in different region of the world, intensive subsistence farming, commercial farming, plantation, then cropping season in India, that you have studied Rabi crops, Kharif crops and Zaid crops, and what are the major crops and where are these crops are taken from different region of India. So major crops are also given here: grains and leguminous plants, crops, rice, wheat, millet, that is the chorus grain, sorghum, that is jowar, and bajra, that is pearl millet, and ragi, that is the finger millet, maize, pulses, sugarcane, oilseed, tea, and coffee. This you have studied what are the major crops. Beside these, there are some horticulture related crops. Horticulture consists of fruit growing fruits and vegetables. हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल की खेती होना, ठीक है। तो इसमें फ्रूट्स के बारे में भी कल आपको मैंने बताया था पिछली बार में। मैंगो कहाँ होता है, पाइनएप्पल कहाँ होता है, एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट, ये किस रीजन में होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमारे पास जो नई चीज़ बचती है जो हमें कवर करनी है, दैट इज़ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म्स क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्या होती है। रिफॉर्म्स मतलब सुधार, ठीक है। अब हम इस पर ध्यान देते हैं कि ये रिफॉर्म्स क्या हैं। तो दिस रेफर्स टू द टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल चेंजेस फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। किसी भी देश का, किसी भी जगह की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो हम सुधार करते हैं उसमें वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये चीज़ हमें देखना है ये किस किस तरह के रिफॉर्म्स हैं। तो फर्स्ट वन इज़ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंक्लूड collectivism, cultivation, consolidation of land holding, development of cooperative societies, abolition of जमींदारी etc. इसको समझें। मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं उनके अंदर क्या चीज़ आती है। कलेक्टिवाइजेशन मतलब इकट्ठा करना उसको, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जो कंसोलिडेशन मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन पर सामूहिक खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके, जिसको हम कहते हैं चकबंदी। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो किसानों की मदद के लिए काम करती हैं, उन्हें ऋण प्रदान करती हैं, उनका डेवलपमेंट होना। एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी, ज़मींदारी प्रथा जो थी पहले ब्रिटिशर्स के समय में चलती थी। ज़मींदार लगान वसूलते थे और उसका कुछ हिस्सा सरकार को देते थे, पर बहुत सारा हिस्सा खुद रख लेते थे, और वो एक शोषण वाली बात होती थी कि फार्मर को बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाता था। उसे दो जगह, एक तो उनको हिस्सा देना है ज़मींदारों को और सरकार को अलग टैक्स चुकाना। तो इस तरीके से ये भी एक प्रथा थी जो ज़मींदारी जो एबोलिशन हुआ उसको हटाया गया। एज राइट ऑफ इनहेरिटेंस डिवाइड द लैंड होल्डिंग्स टू वेरी स्मॉल यूनिट्स एंड दैट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। सो द लैंड रिफॉर्म वाज मेन फोकस इन आवर फर्स्ट 5-year प्लान। लैंड रिफॉर्म्स को हम इस तरीके से करते हैं।
So, dear students, once again, I would like to teach you the same points. I gave you the idea about institutional reforms. What are the different institutions? Cooperative societies development, abolition of zamindari, chakbandi. Okay, so these are the reforms made by the government under 5-year plans. The next one is technological reforms. What are these technological reforms? Technological reform क्या होते हैं? The laws of land reform were enacted, but their implementation was lacking somewhere. The government of India, 1960s to 70s, introduced agricultural reforms to improve Indian agriculture like green and white revolution. Technological reforms include that the technology that we are using in agriculture that must be improved, and for that different type of good yielding varieties seeds can be used, different type of fertilizers can be used, bio fertilizer or chemical fertilizers can be used, and different type of instruments which are needed, equipments which are needed for agriculture that can be used. So agriculture also needs the technology. So this type of reforms are made, and under these reforms, इस तरह के reforms में ग्रीन और वाइट रिवॉल्यूशन भी एक उसके रूप में प्लान के रूप में आया. ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब था टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेन, अनाज की उत्पादकता बढ़ाई जाए, अनाज को बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाए, बिकॉज कंट्री वॉज इन नीड ऑफ ग्रेन एज द पॉपुलेशन वॉज ग्रोइंग. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नए तरीके उपयोग में लाना, अच्छे बीजों को और तकनीकी को उपयोग में ला करके ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का उत्पादन करना, ये कहलाया ग्रीन रिवॉल्यूशन. वाइट रिवॉल्यूशन से मतलब है पशुपालन से हम जो दूध पैदा करते हैं, तो इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्शन, दूध की भी मात्रा जो प्रोड्यूस होती थी उसको बढ़ाया जा सके. तो ये भी एक एग्रो बेस्ड है, मतलब कृषि पर आधारित है, इसलिए इसको भी करना ज़रूरी था. तो इसमें भी ध्यान दिया गया कि किस तरह से हम दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं. उसके लिए जो भी प्लान चलाया गया उसका नाम दिया गया वाइट रिवॉल्यूशन. एग्रीकल्चरल फाइनेंस, ये भी एक रिफॉर्म था. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण, रीजनल, रूरल, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. किसानों के हिसाब से उनकी बैंकों का स्थापना करना और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना करना, ताकि वो किसानों को लोन प्रोवाइड कर सकें कम रेट पर और उन्हें अपनी खेती करने में कोई परेशानी ना आए. तो एग्रीकल्चर में भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसान को फसल उगाने से पहले बीज खरीदना होता है, खाद खरीदना होता है, जुताई और उसका खर्चा आता है, मज़दूरों का खर्चा आता है. ऐसे बहुत सारे खर्च होते हैं जो किसान को चाहिए होते हैं. अगर वो उसे नहीं मिल पाते हैं सरकार की तरफ से, तो वो मार्केट में जो साहूकार होते हैं उनसे कर्ज लेता है, और वो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि ब्याज पर लिया गया पैसा चुका पाना बहुत आसान नहीं होता. तो ये आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं फार्मर्स को उनकी नीड के लिए. अगला जो इसके अंदर हम देखते हैं, ये क्या है, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम. लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं? इन द ईयर 1980s and 1970s, many institutional and technological reforms were made under Comprehensive Land Development Program, LDP कहा जाता है इससे. ये जितने भी काम किए गए 80 से 90 के बीच में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो किए गए, उसमें टेक्निकल रिफॉर्म्स किए गए. कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये एक हिस्सा थे. द प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज.
साथ ही साथ किसानों को जब बहुत नुकसान हो जाता, बाढ़ आ जाती या ओले के कारण फसल नुकसान हो गया, तो ऐसे में फसल बीमा की योजना लाई गई। इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, सूखे में अगर फसल बिगड़ती है तो उसको पैसा इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करेगी। फ्लड जो है, बाढ़ आ जाती है, उसके भी पैसा कंपनी भुगतान करेगी। ऐसा ही साइक्लोन वगैरह, फायर या आपके इस तरह के किसी भी केस के अंदर सरकार उनको मुआवजा देती है। अदर रिफॉर्म्स, इसके अलावा दूसरे रिफॉर्म्स और क्या हैं, ये हम देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, आप देख सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से मतलब है स्कीम फॉर गिविंग इजी एंड चीप लोन टू स्मॉल फार्मर्स, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम एंड किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। इसके अंदर किसान क्रेडिट कार्ड में एक कार्ड तो मिलता ही है किसान को, जिससे वो कुछ हल्की मात्रा में ऋण, जो उसकी कैपेसिटी रहती है, जो उसके पास एसेट्स हैं, उनके आधार पर उसकी कैपेसिटी डिसाइड की जाती है और उसको ऋण ले सकता है, कर्ज उस पर ले सकता है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है, यदि किसी व्यक्ति किसान को कुछ हो जाता है तो भी वो उसका भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक से लोन, और ये स्मॉल फार्मर्स जो रहते हैं उनको खेती करने के लिए पैसा प्रदान करना, लोन प्रदान करना, ये इस किसान क्रेडिट कार्ड से भी आप उस लोन को हासिल कर सकते हैं। तो स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू रेडियो एंड टेलीविज़न चैनल। साथ ही साथ किसानों में अवेयरनेस लाने के लिए, जागृति लाने के लिए स्पेशल टाइप के वेदर बुलेटिन भी प्रसारित किए जाते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स को टीवी चैनल्स पर बताया जाता है ताकि किसानों को खेती के बारे में अच्छी जानकारियाँ मिल सके। उन जानकारियों का उपयोग करके वो अपनी फसल को और ज़्यादा पैदा कर सकें। तो ये बुलेटिन्स, वेदर बुलेटिन, मौसम का अगर बुलेटिन आता है तो किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। तेज़ गर्मी पड़ने वाली है तो वो अपनी फसलों को बचाने के लिए कुछ और इंतज़ाम करते हैं ताकि गर्मी से उनकी फसल नुकसान ना बैठे। तो ऐसी कई चीज़ें होती है, वेदर बुलेटिन से हमें मालूम पड़ जाता है। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इतना तो देना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा आप उसको कम नहीं कर सकते। जो न्यूनतम मूल्य डिसाइड किया गया है किसी भी फसल का, वो कहलाता है MSP। Agriculture products like cereals, pulses and others to check the exploitation of farmer by middleman। बिचौलिए जो रहते हैं वो भी किसान का शोषण कर लेते हैं, इसलिए सरकार ने उनको भी अलग करके और किसानों के लिए कोशिश की है कि वो अच्छे से अच्छा उनको फ़ायदा दिला सके। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये आपने देखा पूरा जो रिफॉर्म्स वाला चैप्टर था, हमने इसको ख़त्म कर दिया है और मैं आपको इसकी PDF भी भेज दूँगा। तो आपने ये सब ध्यान से पढ़ना है और किताब में जो भी लिखा है उसको पढ़ें और उसके नोट्स बनाएं जो मैं PDF देता हूँ उससे, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में NCERT की उसमें से लिखें। तो ये आज चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप अच्छे से याद करें, पढ़ाई करें और कॉपी भी बनाएं। थैंक यू।